Hey everyone, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh. I'm the English faculty in Manu Law classes. In today's session, I'm going to discuss the strategy for upcoming 60 days, which everyone has to follow. In today's video, our faculty will be discussing his or her respective subjects. So be until the end of the video to ascertain a lot of information. So as you can see the topic that says 60 days subject wise strategy. So under this, I will be discussing my section. All right. So let us talk about English. So in today's session, we will be basically dealing with ALIT plus CLAT. CLAT is going to be conducted on 3rd December and ALIT is going to be conducted on 10th December. So almost 60 days are left if we exclude some festivals. So let us see what you will do during this time. You can see through these slides that reading newspaper for 30 minutes is must. Most of the students will do what? They will just quit reading newspaper because they would think now it's time to do mock analysis and other things. See, this 30 minute is gonna be a game changer for you. Your speed will matter during the examination. Okay, so this speed will come only through reading till the last moment. Secondly, you have to solve passages, reading comprehension daily, 5 to 10 passages daily. As you know, CLAT and ALET both examination have passage based question. So ensure that you are solving passages because there is no shortcut to solving passages than practicing a lot. Third, the vocab book that you have prepared over the year now, you can revise it because the words are the important factor in passage based questions. If you are stuck in any passage, then you will face problem in understanding. Grammar, just a quick review because ALET can ask one or two questions, not more. So just a quick review will help recognition of parts of speech and question tag and other. So just have a quick review. Predominantly focus on solving RCs and reading newspaper. Previous year questions of 2022 to 2022 May and December both. December one was 2023. All right. So this 4 year paper, this is 2022, 2020, 2021, 2022 and 2023 December one, right? So these 4 year paper is important so that you can analyze the pattern. However, in the case of ALET, it's little different. Ensure that you are working hard in this subject, English, because English is the most scoring subject. So in ALET, 50 questions are supposed to come as per the pattern of the previous year. In CLAT, 25 questions are expected. So in case you have any issues with English, feel free to reach out and practice a lot. All the very best. Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will discuss the strategy of legal aptitude and GK to prepare the CLAT and ILAT examination in 60 days. So first of all, I will discuss the legal aptitude strategy. So देखिएगा, all of you are aware that the examination of CLAT is difficult one, ठीक है? लेकिन अभी आपके पास 60 डेज बचे हुए हैं और इन 60 डेज में ये एक चैलेंजिंग एग्जाम होगा आपके लिए कि आप इसको प्रिपेयर करें, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। सो आप इसको 60 डेज में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजी के पॉइंट डिस्कस करता हूं जिसकी हेल्प से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सो अगर हम देखें वीक 1 to 4 यानी कि फर्स्ट वीक एक वीक से 4 वीक तक आप क्या करें, यानी कि डे 1 से 28 डे तक आप क्या करें। तो पहला पॉइंट ये है कि फोकस ओनली ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लैट में जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो कॉन्ट्रैक्ट से आने के चांसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर आपको क्लैट, आईलेट, टॉट या जो भी सब्जेक्ट हैं,
उसके केवल आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने, ठीक है? पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा स्टडी करने का नहीं, इस टाइम पर आपको कम स्टडी करनी है, लेकिन क्वालिटी स्टडी करनी है। सेकंड पॉइंट क्या है? सॉल्व बेसिक लीगल रीजनिंग प्रॉब्लम फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट। तो आप जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, उसके बेसिस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना मैंडेटरी है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपका आपने कितना समझा है, इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है कि हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि आपने कितना समझा है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट लीगल इन्फॉर्मेशन या करंट लीगल जीके आप पढ़ें। अब इसमें क्या है देखिएगा, इसमें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आप बड़े ही स्पेसिफिक हों। स्पेसिफिक इन द सेंस कि एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट लीगल जीके इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है? आपको केवल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही पढ़ना है और उसको याद रखना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ लें और बाद में उसको रिटेन ना कर पाए अपने माइंड, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, ठीक है? नेक्स्ट इसमें क्या करना है कि आपको लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट पढ़ने हैं सुप्रीम कोर्ट के, केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने हैं और किसी हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ना है। लेटेस्ट एक्ट, जैसे ये वो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट आया है अभी, इसको पढ़ना है। लेटेस्ट अमेंडमेंट, जैसे कि ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा इससे संबंधित, या लेटेस्ट बिल्स जो भी आ रहे हैं और जो कि इम्पोर्टेंट है। Everything is not important for you. You have to focus only upon the latest and landmark information. Now we come to the next point. 5th और 6th वीक में आपको क्या करना है, यानी कि 29 डेज से 45 डेज तक आपको क्या करना है। फिर आपको जब आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको एवरी मॉक टेस्ट के बाद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। आपको अपने जो वीक पॉइंट हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना है। आपकी जो मिस्टेक्स हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? और मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट है वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज़। तो देखिए, पहला बात आपको ये है कि इस बार क्लैट का जो टाइम है, वो थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको 120 क्वेश्चन आएँगे और 120 मिनट ही आपके पास होंगे। तो इट मीन्स आपके पास 1 मिनट में 1 क्वेश्चन को करना है। बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, तो आप इसको नहीं अचीव कर पाएँगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि सारे क्वेश्चन जो हैं, वो करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है? तो सपोज़ जैसे आपको 120 क्वेश्चन्स आएँगे, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप 120 ही करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आप अगर इसमें से 110 करते हैं, 105 करते हैं, इवन 100 भी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो 100 सही हैं। अगर किसी क्वेश्चन को आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, उसको आप अटेम्प्ट करते हैं और वो आपका गलत हो जाता है आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। तो वो आपको नंबर नहीं देगा, बल्कि और आपके मार्क्स को कम कर देगा। तो ये है आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू टू रिवाइज लीगल रीजनिंग प्रिंसिपल एंड कांसेप्ट। तो बेसिकली क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट लीगल कांसेप्ट्स हैं, लीगल प्रोविजंस हैं, उसको आपको बार-बार रिवाइज करना है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, और जो भी आप पढ़ें सो एट लीस्ट 5 टाइम्स आपका उसका रिवीजन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रिवीजन 5 टाइम नहीं करोगे 5 टाइम्स नहीं करोगे, तो आप उसको भूल जाओगे एग्ज़ामिनेशन में। नेक्स्ट फिर हम आते हैं 7 टू 8 वीक में, यानी कि 46 टू 60 डेज़ में आपको क्या करना है, ये फाइनल प्रिपरेशन होगी आपकी। इसमें क्या करना है आपको कि जो इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है उसको बार-बार रिवाइज करते रहना है। जो लैंडमार्क जजमेंट है उनको पढ़ते रहना है।
प्रीवियस मॉक को उठाकर देखना है, अगर उसमें आपने कोई मिस्टेक करी है तो उस मिस्टेक को अवॉइड करना है, ठीक है? और आपको अपने जो वीकर एरियाज़ हैं, उस पे फ़ोकस करना है और अपनी स्ट्रैटेजी को रिफ़ाइन करते रहना है। जो भी आप टारगेट बताएँ, उसको टारगेट को आपको अचीव करना है। सो ये तो हमने डिस्कस करी आपके साथ लीगल एप्टीट्यूड की स्ट्रैटेजी। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो बेसिकली आप इन 60 डेज़ में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पर कैसे अपनी कमांड बना सकते हैं। सो बेसिकली क्या है, सबसे पहले आपको पास्ट ईयर पेपर्स देखने हैं और सिलेबस देखना है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पेपर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है या किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा जीएस जो है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, ठीक है? वैसे तो सारे सब्जेक्ट बहुत वास्ट होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली जीएस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है? अब इसलिए आपको यहाँ पर अपने आप पर थोड़ी-सी रेस्ट्रिक्शंस लगानी है। जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको लगता होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन उसकी इम्पोर्टेंट है। लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर की, किसी भी बुक की, किसी भी कांसेप्ट की सारी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती है। और एग्ज़ामिनर हमेशा आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से ही या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से ही क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है आपका बुक सोर्सेज फॉर एग्जाम। तो बेसिकली आपको स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी है और आपको कोई भी मार्केट में आने वाली बुक को नहीं पढ़ना। तो मार्केट में आप देखेंगे कि मार्केट में आपको हंड्रेड्स किताब भी मिल जाएंगी आपको जीएस पर ही, लेकिन आपको उसमें से कुछ सेलेक्टिव बुक्स को ही पढ़ना है। तो ये नहीं है कि जो भी बुक मार्केट में आ रही है आपको उसको परचेज करके पढ़ना है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसके उस पर आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि देखिएगा जब आपके पास अपने नोट्स होते हैं, तो उन नोट्सों को आप क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लिखी गई इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम और इतनी आपकी कांसेप्ट क्लैरिटी भी नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका रिवीजन करना। तो जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक अटेम्प्ट करो। फिर मॉक का एनालाइज़ करो और देखो कि कहीं आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है या जो मिस्टेक आप कर रहे हैं उसको रिपीट ना करो। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, डूज़ एंड डोंट्स मतलब कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है। तो पहली करने वाली चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। डेली हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए क्लैट में क्या होगा कि पैसेज आएँगे और आपके पास टाइम लिमिटेड होगा। तो इस टाइम लिमिटेड टाइम में आपको क्विकली पढ़ना है, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी आपकी फास्ट रीडिंग की दोनों जगह काम आएगी, बी इट क्लैट और आइलेट। नेक्स्ट ये हमने बताया कि आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए और डेली और वीकली रिवीजन। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप अपना एक डायरी बना सकते हैं और आप ऐसा मैनेज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इन्फॉर्मेशन को आपने आज पढ़ा है 30th सितंबर, ठीक है? तो इसको आप अपनी एक डायरी में लिख लें और फिर इसको रिवाइज़ करें, रिवीजन डेट इसकी डाल दें 7 अक्टूबर। तो बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने आज जो भी पढ़ा है उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो 2 दिन बाद आप भूल जाते हैं, ठीक है? जिसका कॉन्सिक्वेंसेज़ ये होता है कि आप उस एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आज आप पढ़ रहे हैं उसको रिकॉर्ड रखें और हर 7 डेज़ में उसको एक बार रिवीज़न दें। अपने प्लान को डेली बेसिस पर, वीक बेसिस पर, मंथली बेसिस पे बनाएँ और उसको एग्ज़ीक्यूट करें। देखिए बच्चों, केवल प्लान बनाना ही सफिशिएंट नहीं है। प्लान को एग्ज़ीक्यूट करना भी उतना ही मैंडेटरी है क्योंकि बिना एग्ज़ीक्यूशन के कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप टेस्ट योरसेल्फ, टाइम टू टाइम अपने आप को टेस्ट करो बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। तो जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन है लाइक क्लैट और आइलेट तो उसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एट लीस्ट लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस
लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करें। इट इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट पॉइंट है, आप मोटिवेटेड रहें, डिमोटिवेटेड बिल्कुल ना हो, क्योंकि देखिए कोई भी जो एग्ज़ामिनेशन है, वो सबके लिए है, ठीक है? और केवल आपके लिए ही नहीं है। इसके क्या आपको नहीं करना, आपको वेस्टफुल रीडिंग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर की सारी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, तो आपको केवल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है, तो वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और जो स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ स्टडी नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट में बहुत सारी की बुक्स मिलेंगी, बट एवरी बुक इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है? तो आपको फ़ोकस करना है केवल इम्पोर्टेंट बुक्स पर ही, और किसी पर फ़ोकस नहीं करना। यानी कि सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल that may also be available in the market, but you will not focus on that. So, dear students, I have discussed the strategies regarding the legal aptitude and GS sections. That's all for today. I will come again with more such videos. Till then, thank you very much. Goodbye. Hello everyone. So today we'll discuss last 60 days strategy for CLAT and ALET in logical reasoning and math section. And as you know, it's a very important section for CLAT and ALET respectively. So we have to start with the a strategy which will help all the students how to score good marks in the mocks and as well how to perform good in CLAT and ALET. I hope you all are working hard and now we have to make a plan, proper plan for your studies, right? Now, what is the first doubt from maximum students? जो पहला डाउट होता है वो ये होता है कि भाई फोकस सर मॉक्स पे कैसे करना है, ठीक है? देखो जब भी आप मॉक्स लगाएं, whether you are going to give in the institute or whether you are giving online anyway, that 2 hour जो ड्यूरेशन है 2 आवर का वो बहुत डेडिकेशन से आपको करना है, ठीक है? मतलब प्रॉपर फोकस मॉक पे होना चाहिए। अगर फोकस मॉक पे नहीं बनता है मीन्स यू आर लैकिंग विद द कंसेंट्रेशन एंड इफ यू आर लैकिंग विद द कंसेंट्रेशन दैट मीन्स you did not work hard on your studies, right? Means you are busy in somewhere else. So try to focus on your studies, and when you will focus on your studies you will focus on the mocks also, right? तो डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है आपने। जितना भी पॉइंट्स है, जितना भी स्टडी है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज और इम्पोर्टेंस और सबकी सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, ठीक है? तो ये बात आप समझ गए कि करना क्या है, फोकस करना है मॉक्स पे, ठीक है? फिर बात होती है डाउट स्टूडेंट के सर स्टडी आवर्स कैसा रहेगा, ठीक है? स्टडी आवर्स देखिए मिनिमम अभी जब डिमांड होगा आखिरी 60 दिन का 60 डेज स्ट्रैटेजी में, अगर पर डे का डिमांड सोचोगे मतलब अगर आपको समझना है कि पर डे कितना पढ़ना, अभी मिनिमम 8 घंटे पढ़ने होंगे आपको, ठीक है? मिनिमम 8 आवर्स यू हैव टू स्टडी फॉर क्लियर क्लैट, ठीक है? अब ये 8 आवर का जो प्लान है, ये आपको आपके सब्जेक्ट के वाइज प्रिपेयर करना होगा। मतलब किस सब्जेक्ट पे आपको कैसे या तो 2-2 घंटे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, तो आप 2-2 घंटे करके डिवाइड कर लो, या तो 8 आवर्स में क्या कर सकते हैं, 2 ही सब्जेक्ट पढ़िए, पर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट? डोंट स्टडी अ सिंगल सब्जेक्ट ऑन होल डे। तो एक दिन पूरा ही सब्जेक्ट एक को दे रहे हैं पूरा दिन, ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होती, ठीक है? फिर आपको बाद मॉक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स रहते हैं कि मॉक्स की फ्रीक्वेंसी सर पर डे एक मॉक्स दें। देखिए पर डे एक मॉक इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट? पर डे इज मॉक इज नॉट द सॉल्यूशन। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि मॉक्स जो देने हैं हमें वो कैसे देने हैं। मॉक्स 2 दिन बाद मतलब हर थर्ड डे एक मॉक दे सकते हैं, राइट? अगर आपको लगता है थर्ड डे एक क्लाइंट दे दो, ठीक है? फिर उसके 2 दिन बाद ए लीड दे दो, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी ये रहे, हफ्ते में 2 से 3 मॉक, मैक्सिमम 3 मॉक्स एक वीक में होना चाहिए, ठीक है? पर डे मॉक्स देंगे तो आप रिविजन नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि डेली प्रैक्टिस करते हैं मॉक्स की। दैट्स नॉट द गुड स्ट्रेटजी। इफ यू आर डेली प्रैक्टिसिंग मॉक्स मीन्स समथिंग यू आर गोइंग टू लैक इन रिविजन, राइट? रिवीजन अच्छा नहीं होगा और जब रिवीजन अच्छा नहीं होगा तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो मॉक्स हफ्ते में 3 दीजिए मैक्सिमम। आपको क्या करना है, हफ्ते में 3 मॉक देना है।
ठीक है, मैक्सिमम 3 मॉक्स इन अ वीक एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड, आप 2 क्लैट का और 1 एलेट का दे सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि सर 2 मॉक एलेट का दे दूं, 1 क्लैट का दे दूं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट आई विल सजेस्ट कि 2 मॉक्स क्लैट का, 1 एलेट का दे दो हफ्ते में, ठीक है। फिर क्या करना है, इन मॉक्स को एनालिसिस भी करना है। समझ में आ रही बात? तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी स्टार्ट समझते हैं इस बात को कि क्लैट में क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में और एलिट के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टार्ट देने की। देखिए, रीजनिंग की जो बात है, अगर रीजनिंग को प्रॉपर समझे हम, तो रीजनिंग में हमें ये समझ में आ रहा है, अगर क्लैट को बात करेंगे तो क्लैट सीआर पूछेगा, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, मतलब पैसेज बेस्ड सीआर रहेगी। एलेट की बात करें तो एलेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एनालिटिकल भी पूछ रखा है, सीआर भी पूछ रखा है, पजल भी पूछ रखा है, राइट। तो अभी एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, रीजनिंग की एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वो कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि हमें फोकस करना है एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ पार्ट पे, जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, ठीक है, फिर डायरेक्शन हुआ, फिर बाइनरी लॉजिक हुआ, फिलॉक्स हुआ और लॉजिकल डिडक्शन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्फाबेट कोडिंग भी आप कह सकते हैं, अल्फाबेट कोडिंग। सो these are the necessary chapters which you have to cover. अब बात कर लेते हैं सीआर की। भाई सीआर तो क्रिटिकल पार्ट है, पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस कैसे करना, मॉक्स में करते ही हैं आप, ठीक है। बट मॉक्स के बाद अगर बात करें क्लैट एनालिटिक कॉम्बिनेशन में, तो सीआर में आपको 4 पॉइंट तो हमेशा समझ में आना चाहिए। आपको स्टेटमेंट अजम्पशन तो तैयार करना ही करना, ठीक है, मतलब इस पे फोकस रहना है। अब स्टेटमेंट अजम्पशन आप वन लाइनर भी करिए और पैसेज बेस्ड सी भी समझिए, ठीक है। सेम विद गो विथ स्टेटमेंट कंक्लूजन, you have to do one liner question as well as you have to do the passage based CR. Now you have to do argument based question, strengthen the argument, weaken the argument। फिर आपको क्या करना है, ये 3 तो सीआर के हो गए बात, ठीक है। फिर और क्या कर सकते हैं आप, कोर्स ऑफ एक्शन भी रख सकते हैं, क्योंकि एलेट में कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रखा है। समझ में आई बात, एलेट में कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रखा है। तो ये 4 पॉइंट्स ये हो गए। अब देखिए, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। इन्फरेंस, एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फरेंस, इन्फरेंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन इन्फरेंसेस में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा बहुत आपको समझना होगा। ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक्स की, एज वेल एज यू आर वर्क हार्ड ऑन द रिविजन ऑफ द टॉपिक, राइट। टॉपिक के कंसेप्ट का रिविजन रेगुलर करना है, ठीक है। पजल, फिर पजल आपको एटलीस्ट वन पजल अ डे बनाना, वन पजल तो रोज बनाओ भाई, एक पजल तो बनाते ही रहो। क्या होता है, प्रैक्टिस छूट जाती है पजल की, एग्जाम में अचानक से पजल दिखेगा, प्रैक्टिस थी नहीं आपकी, ठीक है, फिर वहां से आप लैग कर जाएंगे। सीआर पे को अगर आपका डाउट है तो कम से कम 5 सीआर रोज बनाना है, 5 सीआर डेली यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट। एक पजल, एक तो मिनिमम बोल रहा था, पर एटलीस्ट वन पजल बोला मैंने, कम से कम एक पजल, 2 भी बना सकते हो, मेरी मानो तो 2 ही बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब बात करें कि क्रिटिकल रीजनिंग क्लैट के हिसाब से समझ में आई, एलिट के हिसाब से एनालिटिकल रीजनिंग समझ में आई और पजल समझ में आया। तो हमें एक कॉम्बिनेशन बनाया जिससे हम रीजनिंग को कवर कैसे करना है ये समझ में आ रही है। फिर हम बात करते हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो आता है क्लैट में, ठीक है। देखिए, इसके लिए ना क्लैट के लिए बेसिक मैथ आना जरूरी है। अभी भी 60 दिन है, अगर बेसिक मैथ पे फोकस करें हम, इस बेसिक मैथ में हमें क्या करना चाहिए, देखिए, बेसिक मैथ में हमें परसेंटेज सबसे ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, परसेंटेज सबसे ही इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट है, फिर एवरेज इंपॉर्टेंट है, आपको फिर एवरेज भी करना है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन करना है आपको, ठीक है। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं, मतलब
इसमें 1-2 चैप्टर और टाइम एंड वर्क लिख देते हैं और एसडीटी। मतलब मैं कहूंगा अगर ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर अगर आप कवर करते हैं, these 6 chapters means your basic of maths is clear. गेटिंग माई पॉइंट? मतलब डीआई में एक बहुत बड़ा डर है बच्चों के लिए, सर डीआई कैसे बनाना? बेटा पहले आपको बेसिक मैथ सही करनी है, ठीक है? अभी भी 60 दिन में मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक हफ्ते में आप इसको 2 बार कवर कर सकते हैं, एटलीस्ट एक बार तो कर सकते हैं, ठीक है? 3-6 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, एक दिन में एक टॉपिक भी करते हैं तो एक हफ्ते में आप बेसिक मैथ्स क्लियर करते हैं। अगले हफ्ते में उसका रिविजन करिए, ठीक है? 2 हफ्ते में आपका ये मैथ्स खत्म हो जाएगा। फिर आप डीआई में आप लोग समझ लोगे किसलेट बेस्ड डीआई जो कि इम्पोर्टेंट है क्लैट के हिसाब से। और आप किसलेट कर रहे हैं मतलब पैसेज बेस्ड डीआई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप ग्राफ बेस्ड डीआई छोड़ देंगे। ग्राफ मतलब बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सब करके जाना है। टेबल ग्राफ क्यों करके जाना है? देखो नो वन नोज की क्लैट में पूछेगा क्या डाटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है? पर हाँ, जो बच्चों की बेसिक मैथ्स अच्छी नहीं है, वो पहले बेसिक करेंगे, फिर डीआई करेंगे, ठीक है? फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैथ्स में पार्ट आएगा कैलकुलेशन का, ठीक है? इसीलिए फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी? देखिए, पहले तो मेरे शॉर्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा आपको ट्रिक अप्रोच बताया रखा गया है, क्लासेस में भी ऐसे भी। तो फास्ट कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है? स्क्वायर 1 से 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है? फिर शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट आना चाहिए, राइट? फिर डिवीजन का शॉर्टकट आना चाहिए, ठीक है? परसेंटेज का शॉर्टकट आना चाहिए, फ्रैक्शन आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब अगर आपको आता है, तो मतलब आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब केसलेट बेस्ड डीआई और अदर डीआई जो है, मतलब आपको ये तभी अच्छा होगा जब कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो ये दोनों पार्ट बेसिक मैथ और कैलकुलेशन अगर आता है, फिर आपका डीआई सेक्शन अच्छा हो जाएगा। समझ में आई बात कैसे कवर करना है इन 60 दिनों में? रोज की बात करें तो डीआई डेली कितना बनाना चाहिए? कम से कम 3 डीआई आपको करना है। यू हैव टू सॉल्व 3 डीआई पर डे, ठीक है? अब बात करें हाउ टू एनालिसिस अटेम्प्टेड मॉक, ठीक है? इन 60 दिन में मॉक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, ठीक है? अब मॉक्स के एनालिसिस की जब बात करेंगे तो सबसे पहले क्लैट दे रहे हो चाहे एलिट दे रहे हो, आपको टाइम मैनेजमेंट समझना हो, ठीक है? अगर आप टाइम मैनेजमेंट समझ जाते, टाइम मैनेजमेंट क्लियर है आप कि भाई कितने घंटे में क्या करना है, मतलब स्लॉट्स बना लो। 30 मिनट पहले में मुझे कितना क्वेश्चन अटेंड करना, अगले 30 मिनट में मुझे मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, या पहले 30 मिनट में इजी क्वेश्चन बना लो, ठीक है? फिर इजी टू मॉडरेट बनाओ, इजी टू मॉडरेट बनाओ। समझ में आ रही बात? फिर 30 मिनट में आपको टफ क्वेश्चन बनाने चाहिए। समझ में आई बात? एंड दोज मीन्स ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। टाइम के हिसाब से मॉक को डिवाइड करो, ठीक है? अब और जो आपका टाइम बचता है, उनमें आप उन फोकस करो क्वेश्चन को जो आपको टफ लगते हैं, जो लगता है जो छोड़ना है, पर उनको बनाना ज़रूरी है, ठीक है? कोशिश करना मैक्सिमम अटेम्प्ट रखने का। रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन की बात करें अगर, तो हमेशा एनालिसिस करने में रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन को हमेशा एनालिसिस करिए, ठीक है? क्योंकि यहीं से आपके नंबर इंप्रूव होने वाले हैं। स्किप्ड क्वेश्चन को ज़रूर देखें। क्यों स्किप किया था? क्या रीज़न था? टॉपिक नहीं क्लियर था, क्लियर करिए। रिवीजन नहीं है था, टॉपिक का रिवीजन करिए, ठीक है? ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर आते हैं हाउ टू डू रिवीजन। रिवीजन में क्या रिवीजन करेंगे आप? देखिए, जो अदर सेक्शन है, अदर सब्जेक्ट है, वो तो करना ही है। मैथ्स को डेली बनाना है, बेसिक जिसकी नहीं है। जिसकी बेसिक अच्छी है उसको 3 डीआई डेली बनाना है, ठीक है? फिर लॉजिकल रीजनिंग में एटलीस्ट एक पजल बनाइए आप, ठीक है? फिर डीआई के लिए अगर कैलकुलेशन है तो बेसिक मैथ्स करेंगे तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है? हमेशा कैलकुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डीआई। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू सॉल्व योर डाउट्स in all 60 days strategy, and you will get all the concept of this 60 days strategy. Thank you so much.